मैं मेरे स्टाफ को अभी आपके दरमियान भेजूंगा माइक के साथ में, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब नसीम अहमद साहब आपसे मुखातिब होंगे। Good afternoon, everyone. Yes, you can ask your question a little later, but I would like to say a few points about the issues that you have to convey to the Hajis. Last year and previous years also, we have faced a lot of problems, mainly because the Hajis mobile number is not known. That is, when cover number is generated, it is generated by an agent. Agent is putting some number, and at the end of the day, Haji is going with a different number. We are not able to communicate with the Haji at all. This is a major issue. Please, trainers, please communicate to the Haji. Please give his personal mobile number that he is taking to Saudi Arabia. This is very important. If it is to be updated, please communicate to the state Hajj committees. We will give the option to update the cover numbers with their mobile numbers. Second is next of kin, that is family members. If Haji is going to Saudi Arabia, his next of kin's number should be clearly mentioned. And that number also should be very clearly, properly mentioned. Many times the agent number is given as next of kin. He is not responding. Many times death cases also happen. We are not able to get the consent form for doing the final formalities of the Hajis. This is also a major issue. So in this case, both the numbers, Haji's number as well as the next of kin number, should be shared with the Hajj committees very positively. During your training, please insist to the Haji, what is your final mobile number that you please communicate to Hajj Committee of India. Next is, if you can intimate the Haji, train him on especially health matters. That is, if anybody gets sick, what are the formalities, how to approach the Hukumat Hind as well as Saudi Hukumat for getting the benefits. Many times what we have seen is the Haji gets sick, he is not knowing what to do, and his own history is not able to communicate. So this, you please intimate the Haji how to access these health facilities. Another is, even if we are providing maximum health facility, but many of the Hajis are very old and there is possibility of any untoward event happening. If that is the case of untoward event, Hajis also should know how to handle such untoward situations. So there are procedures to be followed. State Hajj inspectors have been trained on what to do in case of untoward incidents. Like, for example, natural death cases or unnatural death cases, there is a government procedure. Most of the activities are done by the service provider or the Tawafar company. There is a set of formalities. The CGI will help you in this regard. But please intimate the general procedure that you will communicate in the training of state Hajj inspectors. So the next of kin, whoever is available in Saudi Arabia, they have to sign some forms, to consent forms to do the final formalities of the Haji. Another thing is communication. Most of the time, when the Haji is not getting the facilities, he immediately goes to the media. That part is there. So we would request the trainers to communicate to the Haji that he can communicate to the official channels. We have already given the escalation matrix. Whom should the Haji communicate with? First, he should communicate with his state Hajj inspector. He should raise his issue in the Hajj Suvidha app. He should raise the issue to the helpline that is given by the Consul General of India. Even if it is not solved, he can raise the complaint to the Saudi government helpline, which is also giving facility in all the languages. After his problems are not solved by all these mechanisms, he can approach the branch office, which is also very nearby in his Adizia. He can sit there and get his problem resolved. Even if it is not solved, then he can escalate the matter and take it up with other officials. But we would request Haji to first utilize all the official channels, and after it is exhausted, he is at his own discretion use whatever means necessary. Another is, as Mr. Jalil has indicated about buying material and putting new bags. That we understand. Haji buys some material, he wants to take a new bag. But we would request that the new bag, he should always mention his cover number and his mobile number, Saudi mobile number, and his name. If these three things are mentioned, we will definitely track the number, track the bag. So no issue ki you don't need to buy new bags. Haji can always buy new bags. Another thing is regarding Zamzam. See, what Haji thinks is, I will get more Zamzam. In Adizia, he conserves all the bottles of Zamzam and puts in his check-in bag. He also buys gold and puts in the same check-in bag. So what happens? The Saudi authorities detect Zamzam. They cut open the bag. When taking out the Zamzam, maybe some valuables also lost. नजीम साहब, जस्ट 2-3 थिंग्स। ये जो नजीम साहब ने बताया है, मैं आपको एक कन्वीनियंस के लिए हिंदी में जरा बता देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
पहला तो जो मेडिकली फिट हाजी की बात हुई है, ठीक है, एक ऐसा एपिसोड देखा गया कि जहां पर हाजी साहब बुजुर्ग हैं एंड ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल यूरिन, पेशाब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको एक बैग दी गई हमारे 40 बेडेड हॉस्पिटल से ताकि वो अपना यूरिन वहां पर बैग में कर सके। ये उनका मेडिकल कंडीशन काफी सालों से था, वो हमको बाद में पता लगा, उन्होंने बताया नहीं, वो आ गए वहां पर। अब दूसरे 3 या 4 हाजी जो उनके साथ कमरे में है, अब उनका गुसल इज इन चैलेंज। तो कभी आप अगर हाजियों को देखे करें तो वो जरा उनको समझाइएगा कि अगर बॉडी नहीं अलाउ करती है तो आप वहां पर जाके परेशानी होंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो नजीम साहब ने बताई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ऑफिशियल चैनल। मैं और जलील साहब हम दोनों मीना के अंदर थे। आई विल रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस इफ यू कैन हैव सम पेशेंस। एक मिनट। अच्छा, मतलब आपने इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज में चला है मतलब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, आप 1 मिनट बैठिए, वही कर रहे हैं। हाँ, ये एक और चीज है कि जहां तक ऑफिशियल चैनल की बात है, जहां तक ऑफिशियल चैनल की बात है, मैं और जलील साहब मीना में थे। हम लोग देख रहे थे कि सारे के सारे हाजी अराफात चले जाएं। सुबह के 10 बजे हैं, पर हमको एक न्यूज आती है कि एक हाजी साहब ने कंफर्म किया है कि उनकी गाड़ी मीना से अराफात के बदले जिद्दा चली गई है, ठीक है। अब ये एक न्यूज वायरल हुई और सर्कुलेशन में आई कि भाई गाड़ियां जो है वो जिद्दा जा रही है, सऊदी पुलिस अलाउ नहीं कर रही है। इसकी शनाख्त करने के लिए हमने उस कंसर्न खादिमुल हुजाज जो उनके साथ थे उनको कॉल लगाया कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही है। गाड़ी तो अराफात ही जा रही थी। हाजी साहब देखते देखते बोर्ड पढ़ लिए जिद्दा का, तो माहौल बना दिया कि भाई जिद्दा चली है गाड़ी। पर लोग बाग उनको बिलीव करके अननेसेसरी पैनिक में भी आ गए। सो व्हाट नजीम साहब बता रहे हैं, ये 2 चीजें बड़ी वाइटल हैं कि अगर मेडिकली फिट वो भी है तो ही वो हज के लिए आ सकता है। और दूसरी चीज के अगर ऑफिशियल चैनल से कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो कुछ भी चलता रहेगा, वो आप कुछ भी मानते रहेंगे। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट जमजम आप लेके जाना चाहते हैं तो उसको अलग डब्बा में लेके आइए, कार्टन बॉक्स खरीद लीजिए, उसको सील करके जमजम लिख के उसको ऊपर आप कवर नंबर डालिए। तो वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा से ज़्यादा जमजम मिलेगा, नहीं वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ले लिया। ठीक है, तो अनदर थिंग इज डोंट सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप। हाजी को बोलिए कि आपका उनका कवर का ग्रुप है, उनके साथ ही रहे। कभी भी कुछ देखना है, जबल नूर या कुछ नया चीज देखने जाना है, अकेले जाता है फिर वापस नहीं आ पाएंगे। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। अकेले गया, गुम हो गया, 3 दिन हो गया तो वापस नहीं आने के लिए 98% चांस नहीं है। तो यू हैव टू इंटीमेट द हाजी की आपका बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। एंड पैसा सेविंग चक्कर में बहुत ज्यादा करते हैं हाजी कि एक ही बार जा रहा हूँ, सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको हज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके लिए हम अल्लाह को इसमें शुक्र देना है। इसमें एक और चीज है जो नजीम साहब बता रहे हैं, जमजम गुम होना और बैग खोलना। आप अपने से बताइए, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा होगा, कभी आपने सोना चेकिंग बैगेज में रखा है क्या? कभी सोना अगर लेकर भी आए, कभी चेकिंग बैगेज में रखा था? हाजी यहाँ पर आके अगर हमको बोल रहे हैं कि भाई हमारा सोना निकाल लिया है चेकिंग बैगेज से, तो ये चीज फिर मतलब ये है कि ये उनके और अल्लाह के बीच का मसला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी चीज जो बता रहे हैं कि भाई गुम नहीं होना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। एक मोहतरमा थी अपने हस्बैंड के साथ, आई थिंक जलील साहब भी हम लोग सब साथ में थे। हस्बैंड वाइफ दोनों गुम हो गए, हमको इंडिया से कॉल आना शुरू हो गए कि ये गुम हो गए। हस्बैंड वाइफ को ढूंढा गया, वाइफ बोल रही हस्बैंड को कि भाई आप गुम हो रहे हैं, अब आप यहीं पर रहेंगे, मैं जमरात में आपकी वकील हूँ, मैं जमरात में रमी करके आती हूँ। वाइफ गुम हो गई। अब हम उनको ढूंढ के वापस लेकर आए, दूसरे दिन जमरात में फिर से रमी करने की, फिर से गुम हुई है वो। 3 बार वो गुम हुई है, 3 बार हमने ढूंढ के उनको वापस लेकर आए। तो ये है कि अगर
ऐसे ही वहां पर घूमते रहेंगे तो फिर घूमते ही रहेंगे और सब कोई ना कोई किसी ना किसी को तो जान ही रहा है। फिर कॉल चालू हो जाएंगे, फिर कुछ कहेंगे कि कॉल नहीं उठ रहा है। तो काइंडली बी कॉशियस कि एक बार कभी आपको बोला गया है कि एक दायरे में रहिए, लोग बाग के साथ में रहिए, तो लोगों के साथ में रहिए। ग्रुप मत छोड़िए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड एक और चीज देखेंगे कि तो अराफत का अगले दिन, दैट इज द हज का मेन दिन है, तो उस दिन लोग क्या करते हैं, जमात में रमी करके इमीडिएटली जाना चाहते हैं तवाफ़ ज़ियारत और सीधा पैदल जाते हैं मक्का। तो 15-20 किलोमीटर हो जाता है और उस दिन में तो आपको गाड़ी मिलेगा, ऐसे जलील साहब बोल रहे हैं, हम भी देखे हैं, गाड़ी तो नहीं जाता है। नो व्हीकल गोस फ्रॉम बिन दाऊद, वही जगह है उधर का एंट्रेंस। तो उधर से आप अजीजिया या मक्का जाने के लिए तो देयर इज नो वे दैट व्हीकल्स विल मूव, तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये बिलन हेल्थी हाजी है तो वो रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज वो हाजी का तो टाइम है, वो कभी भी कर सकते हैं 3 दिन में। तो वो थोड़ा रुक के फिर उसके बाद तबीयत सही होने के बाद वो जा सकते हैं। वो कभी-कभी काजी फुल एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो 15-20 दिन का 20 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, फिर कहीं वो ही विल गेट वेरी सिक एंड ही विल गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो ये हाजी को ब्रीफ कर लीजिए कि दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, यू कैन डू इट लिटिल लेटर ऑल्सो। एंड मीना पे लगेज लेके आना, एक पॉइंट तो जलील साहब इम्पोर्टेंटली बोला है, ये प्रॉब्लम हाजी को पहले बताने चाहिए। आई मीन नोबडी नोज, नोबडी टीचर्स। तो ये आप ट्रेनिंग में बोल सकते हैं कि पिट्ठू बैग एक लेके आइए, एक बैकपैक, एक हाजी के लिए, लेडीज के लिए भी एक शोल्डर में स्लिंग बैग होता है, वो लेके आ सकते हैं। उसमें उनका एसेंशियल चीज क्या क्या होता है उसको हाजी लेके जा सकते हैं। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, आप ट्रेनर्स होते हैं, आपका अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हैबिट्स होता है, अलग अलग आई मीन ड्रेसिंग हैबिट्स होता है, तो उसके हिसाब से आप बना लीजिए वो चेकलिस्ट हाजी के लिए कि मीना पे क्या क्या लेके आना है। तो ये कंकड़ी मारने के लिए भी छोटा सा बैग्स भी मिलता है, जिपलॉक बैग्स मिलते हैं, वो भी लेके आते हैं, तो बहुत प्रिपेयर्ड आता है। बट ये आपको बोल रहे हैं कि आप एक चेकलिस्ट बना के हाजी को दे दीजिए, ये लेके आइए मीना के लिए, इससे ज़्यादा मत ले आइए। और खाने के लिए भी आप काजू और ड्राई फ्रूट्स ये सब लेके आने से हाजी के लिए कभी इमरजेंसी होगा, वो और पाउडर्स, ग्लूकोज का टैबलेट्स भी मिलता है, वो भी लेके आते हैं कुछ लोग। तो ये सब आप पहले ही बोल दीजिए हाजी को, पैसा का सेविंग नहीं है, आप ये सब लेके जाने से आपका सफ़र आसान हो जाएगा। ये आप ब्रीफ कर लिए तो आपका मीना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात का 5 दिन का हज अच्छा होगा उनके लिए। और एक और चीज़ है, लगेज में वापस आने समय ये सब आई मीन सोना चांदी मिस हो गया ऐसे बोल रहे थे, तो उनको भी पता है कि एक प्रोसीजर है, वो स्टेट हज कमिटीज़ भी इंटीमेट करते हैं कि लगेज में कुछ भी चीज़ मिस हो गया तो एयरलाइंस एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उसमें PIR दैट इज़ प्रॉपर्टी कुछ इंस्पेक्शन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो फाइल कर सकते हैं ऑन रिटर्न फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। तो उस समय स्टेट हज कमिटी आपको फैसिलिटेट करेंगे एट द एम्बार्केशन पॉइंट्स। तो आपका क्या लगेज मिस हो गया उसको डिटेल्स आप लिख के उसको एयरलाइंस को दे दीजिए, उसको हम फॉलो अप करेंगे। आपका रियली इंपॉर्टेंट लगेज मिस हो गया तो हम उसको वापस लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके साथ आपको माइक दे रहा हूँ, आप योर क्वेश्चंस यू कैन आस्क कंटिन्यूअसली, वी विल आल्सो आंसर इट। थैंक यू। आपके पास हमारा स्टाफ मौजूद है, बराए करम कोशिश कीजिए कि एक वक्त में एक ही सवाल पूछा जाए, सवाल संक्षिप्त यानी प्रिसाइज हो और मानी फोर्स हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 3 सवाल थे। जैसे कि ट्रेनर को ट्रेनिंग देने वाले कहा जा रहा है, लेकिन कौन से हाजी को ट्रेनिंग देना है और उनको जो 150 का एलोकेशन है उनको पता नहीं है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, मैं फ्रेशर ट्रेनर हूँ और बहुत सारे फ्रेशर ट्रेनर हैं, तो उनको अपने शहर में जाके कौन से हाजी को ट्रेनिंग देना है, ना हाजियों का कवर नंबर पता है, ना मोबाइल नंबर पता है। तो हज कमेटी से रिक्वेस्ट है कि हर ट्रेनर को 150 जो हाजी एलोकेशन है वो करके दे दे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लास्ट ईयर हज में जब मीना भी आने के लिए बसेस लेट हो गई, तो लेट पहुंचने के बाद कुछ हाजी को पता चला कि उनके बेड पे कोई ऑलरेडी दूसरे स्टेट के हाजी पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से उनको जो है वो बाहर धूप में जो है वक्त गुजारना पड़ा। मीना में भी हुआ, अरफात में भी हुआ, तो इसका जो है वो क्या सोल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हरम के अंदर अजीजिया से हरम जाने के लिए और हरम के अंदर भी और हज के 5 दिन में जो पुलिस होती है उनको इंग्लिश का 1 2 3 और राइट लेफ्ट भी नहीं आता है, उसकी वजह से इंडियन हाजी को जो है बहुत मुश्किल होती है।
तो इसलिए अजीजिया से हरम जाने के लिए कम से कम जो बस के ड्राइवर हो वो हिंदी स्पीकिंग हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तानी बांग्लादेशी हो, ताकि कम्युनिकेशन में वहां से आसानी हो। और सीजीआई डेटा टीम से मिलकर कम से कम सऊदी गवर्नमेंट को बताया जाए कि 1 2 3 राइट लेफ्ट इतना तो बेसिक जो है वो वहाँ के पुलिस को आना चाहिए, ताकि वो अपने इंडियन हाजी से जो है कम्युनिकेशन कर पाए। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन है सर। ट्रेनर को ट्रेनिंग की लिस्ट दी जाए कि किन हाजियों को ट्रेनिंग देना है, और दूसरा जो लेट पहुंचने की वजह से जो ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उनका सीट बिना अरफात में, उनको कैसे सोल्यूशन है, और तीसरा जो है लैंग्वेज का है। वी विल आंसर फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। तो लैंग्वेज के लिए इस साल भी हम प्लान कर रहे हैं कि ड्राइवर्स का इंग्लिश आई मीन इंग्लिश या लोकल उर्दू लैंग्वेज नॉन ड्राइवरी इस बार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 90% वैसे ही होगा, वी होप। एंड रिगार्डिंग द इशू इन ये बेसिकली ड्राइवर्स का रवि something is kind of ड्राइवर्स का थोड़ा रवि भी लाना है, इस वजह से नहीं वो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बोले थे ना, वैसे ही कोशिश किया। एंड तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाजीज कमिंग अ लिटिल लेट एंड दे आर हैविंग बेड्स ऑक्यूपाइड। इसमें एक दो चीज़ है कि आप लगेज का इश्यू भी आप देखे होंगे। तो बहुत हाजी लगेज लेके आते हैं, तो 2 हाजी का मैटर्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 100 हाजी आते हैं तो 200 लोग का अकोमोडेशन अभी आ गए क्या? हाँ, यस। सो एक मैटर्स का क्या इश्यू होता है कि पहले वाला हाजी आने समय 1 मैटर से 1.5 मैटर्स का स्पेस ले लेते हैं, उनको लगेज भी रख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्पेस कंस्ट्रेंट शुरू होना लग जाते हैं, तो उसके लेट में आने वाला हाजी को स्पेस नहीं रहता है। फिर उसके हमारा हुकूमत का लोग होते हैं ना, डेपुटेशनिस्ट, वो आके उनसे बात करते हैं, उसको स्पेस को रिकंस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको स्पेस मिल जाते हैं। बट ये तो साल भर, आई मीन सो मेनी इयर्स इट हैज बीन कंटिन्यूइंग, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल इन मीना। वो अभी हमारा फरद अहमद साहब भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला होगा कि मीना में स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो कम ही स्पेस मिलता है, 0.9 स्क्वायर मीटर ही मिलता है। दैट मीन्स लेस देन 45 सेंटीमीटर हमारा शोल्डर्स का स्पेस है, इतना ही मिलेगा। और हम जस्ट बैठने के लिए जगह मिलेगा, उतना ही है एक हाजी के लिए। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी स्पेस ले लिया तो किसी और हाजी का स्पेस ले रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं पहले दिन आने समय। तो उसको फिर हमारा हुकूमत का लोग आके सब कुछ रिकॉन्फिगर करके लोग को बोल के समझा के सही करने के बाद थोड़ा स्पेस मिल जाता है, उस समय हाजी सही सेटल हो जाए। उसके बाद अगले दिन तो सब लोग अरफत जाने लग जाते हैं, तो सब स्पेस कंस्ट्रेंट कम हो जाता है, उनका अरकान में लग जाते हैं, तो स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं होता है। तो अनदर थर्ड थिंग इज रिगार्डिंग योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अरेंज बाय स्टेट हज कमिटीज, दे प्लान अ डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे अरेंज द ट्रेनर्स। और किस डिस्ट्रिक्ट में किस डेट में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आपका स्टेट क्या है? अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र, सो दे विल कम्युनिकेट यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुफ्ती फैयाज प्लीज भोपाल उत्तर प्रदेश से। मेरा बहुत ही अहम सवाल है, छोटा सा मुख्तसर सा। आप एक सवाल पूछिए, क्योंकि आप आई मीन 3-4 सवाल पूछे थे तो फिर अदर लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एक सवाल पूछिए। एक सवाल है मेरा, वो ये कि 65 साल वाला जो हाजी है उसके साथ एक नौजवान जाता है उसकी खिदमत के लिए। अगर उस नौजवान को कोई मजबूरी आ जाती है, वो नहीं जा पाता है, तो जो 65 साल वाला हाजी है उसके जाने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है, वो किसके साथ जाएगा? ये मेरा सवाल। वो कोई आई मीन नौजवान हाजी को लेना ही पड़ेगा। वो हमारा इस साल का गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा है कि विदाउट अ कंपेनियन 65 प्लस हाजी कैन नॉट गो टू हज। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम सर। सर आइए जनाब। यस, केरला से कोई बोल रहा था पहले से ही। अजीम साहब, कहाँ है? साहब अजीम साहब, यस, बताइए आप कहीं से भी है? आप मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ से सर, लफ्ज़ से लफ्ज़। हाँ, यस। सर ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जो आप बिल्डिंग नंबर्स अलॉट करते हैं सर, क्या ये पॉसिबल है कि ये 10 दिन पहले उसका लिस्ट आ जाए सर? क्या ये पॉसिबल है सर? एक बात ये है सर, अगर ये पॉसिबल नहीं है सर, तो लास्ट ईयर जो मैंने सर को भी रिक्वेस्ट करी थी लास्ट ईयर सर, जो आपका टैग जो है लगेज पे तो टैग लगाता होता है सर,
वो प्लास्टिक वाला सर, वो बिल्कुल ना सही होता है सर, लेकिन उसके ऊपर जो आप स्लिप लगाते हो सर ग्लो स्टिक से सर, यहाँ का टेम्परेचर होता है, मान लीजिए मैं श्रीनगर से हूँ, वहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री में आप लगाते हैं सर, और वो जब जिद्दा पहुंच जाता है तो वहाँ 50 डिग्री होता है। हाँ, वो स्टिकर वापस आ जाते हैं। वो आप बोले थे लास्ट ईयर भी वो इशू आया था, मैंने सर लास्ट नहीं इमीडिएटली सॉल्व किए थे, बट इस बार इसका अलग सा सॉल्यूशन निकल रहा है। यही हम बोले थे कि अभी फ्लाइट बैगेज का टैग होता है, एयर इंडिया और स्पाइस जेट ये सब में एक टैग देते हैं, उसमें टैग डाल के उसको नॉन टेयरेबल होता है, उसमें ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होता है कंटेंट, तो वही हम बना के दे रहे हैं इस बार। तो वैसे टैग में आपका बिल्डिंग नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हाजी के लिए हम भी बोले हैं स्टेट हज कमिटीज़ के लिए कि हज हाउस में लगे जाने समय इसको इंश्योर कर लीजिए कि हाजी के पास ये टैग लगा के फिर उनको एयरपोर्ट भेजेंगे, बिल्कुल वो सर। कंफर्म कर लीजिए। तो इस बार वैसे हो गया तो नॉट इवन सिंगल लगेज विल गो मिसिंग, ये हम एश्योरेंस दे रहे हैं। सर और दूसरा बट ये दिलीप टैग साहब- होना चाहिए, सर, ये तो इम्पोर्टेंट है। हाजी नहीं टैग नहीं लगा तो हमारे लिए वी गिव नो एश्योरेंस। और दूसरा जलील साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक्चुअली जो आप हैंडबैग के बारे में बोल रहे हैं सर, लास्ट ईयर आपको पता होगा सर कि हैंडबैग जो हाजी कैरी करते हैं सर, वहाँ जो बस वाले होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सुडान के होते हैं सर, क्योंकि उनको एरिया का पता नहीं होता सर, और उनके साथ वो कनेक्टेड टाइप के 2 बंदे होते हैं सर, मैंने ऑब्जर्व कर दिया सर खुद ही। हाजियों को वो एयरपोर्ट पे बोलते हैं सर कि आप बैग अपना हैंडबैग कैरी नहीं कर सकते हो, दिस इज द अगेंस्ट द रूल्स ऑफ सऊदी गवर्नमेंट एंड दे आर स्ट्रिक्टली माजरे सर सवाल पूछो यार, हाँ, तुम मैं सब सर- जान के आए हो, ठीक है, वो हम समझ चुके हैं। मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो बैग जो है ना सर वो अलाउ नहीं करते सर, उसके लिए क्या करें सर? वो हैंडबैग सर, वो फिर वो अलाउ नहीं करते हाजी को अपने साथ उठाने के लिए, हम तो हाजी को बोलेंगे सर उठाने के लिए। एक आध 2 केस में ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हैंडबैग अलाउ नहीं करते हैं। Assalamu alaikum. Sir, I am from Kerala. I am a Khadimun Nijaj of last year. Yes, please. I am facing some problem is there. No, one main thing I am telling to you, know, sir. Actually, during the Medina moment, some Hajis are in different, one single cover in Hajis are in different vehicle now. One thing that is in Haji is in one cover, Haji is on one vehicle and the companion is in another vehicle, KHH in third vehicle. That is a totally problems will happen in Sri See, actually we are consulting. everybody is clapping. And also I am consulting that branch officer, they didn't take any responsibilities there, no. And also we are taking, telling to that, we also didn't take, actually what happened, मैं पूछा है ना क्या प्रॉब्लम क्या है, तो ये आप भी बोला है ना, ये दिस इज सर्विस, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर बोला है ना सर ना, मेरे को मुझे बारे में पूछा है ना क्या प्रॉब्लम है, तो यार अपनी तुम्हारा मुताबिक अलग गया ना, ऐसा टोटली प्रॉब्लम्स विल हैपन ऑन एट दैट टाइम. You are absolutely right. The problem also you have answered, and the reason for the problem also you have himself answered. This year वो प्रॉब्लम हम अवॉइड करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम और जलील, तो इस बार ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी एक चीज़ आप समझ लीजिए, सऊदी में जा रहे तो कंपेनियन के साथ ही जाएंगे, आई मीन एंड टू एंड आप उनके एक बस में ही जाएंगे, ऐसे फुल एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है। कभी कभी अलग अलग बसेस में भी जाने के लिए पॉसिबिलिटी है, ये तो आप हाजी को ऑलरेडी बोलना चाहिए। ओके, अनलेस हाजी इज फिजिकली हैविंग सम मेडिकल प्रॉब्लम्स और सीरियस इलनेस, तो हम उनको मदद करने के लिए उसको प्लीज आंसर, आई विल आंसर द क्वेश्चन एंड देन यू प्लीज टेल। Sir, main thing that company he want to that carry that wheelchair, no sir. No, that is He what is I in think. another vehicle, that Haji is in another vehicle. Yes, that is That, what that volunteer also with there, no, that's the problem, yes, sir. that no. is what I'm saying. In the case of That- specific आप स्पेशल नीड्स केस बोल रहे हैं। We understood all the problems, sir, but Haji logs didn't understand, no, sir, no, what happened in there, no. They are in aged people, sir, no. Your problem fully understood, but what is happening is this is a very specific case. ऐसे हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट आप बोल रहे हैं वो डिसेबल्ड हाजी है, कुछ व्हील चेयर रिक्वायरमेंट वाला हाजी है, उसके लिए हम पक्का मदद करेंगे। बट मेनी केसेस हमारे पास आए हैं कि आई मीन जवान हाजी और जवान हज्जन भी है, वो साथ साथ बस में जाना चाहते थे और नहीं जाना चाहे, आई मीन हम भी उनको रिक्वेस्ट किए कि 6 घंटे का सफ़र है, आपको फिर मदीना में सेम रूम में आपको अकोमोडेट करेंगे, आप सब्र कीजिए। तो हाजी और हज्जन माने नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सब बस रोक गया और अदर हाजीज भी नहीं जा पाए, ये भी इश्यूज हुआ था। तो इस बार तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बस में या एक ही सर्विस कंपनी में उनका कवर नंबर का लोग साथ रहेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी वैसे सिचुएशन आ गया कि अलग अलग गाड़ी में जाना है, तो हाजी को आप अभी ब्रीफ कर लीजिए, ऐसे हो सकता है, तो आप सब्र कीजिए, आपको अकोमोडेशन में साथ भी रहेंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा सा 6 घंटे के लिए सब्र कीजिए, ऐसे बोलिए। बट आप स्पेशल नीड्स हाजी बोल रहे हैं, कभी कभी मेडिकल प्रॉब्लम वाला हाजी
और व्हील चेयर ये सब नीड्स वाला हाजी के लिए आप स्पेसिफिकली हमारा कोऑर्डिनेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आप बोलिए तो हम मेहनत करेंगे उनका अलग फौरादा बस में भेजेंगे के लिए। सलाम अलैकुम सर। Assalamu alaikum. सलाम अलैकुम। Sir, I want to share one last year one experience to you, sir. Last year one experience I want to share you, sir. Sir, most of the time our patient we are carrying to our branch hospital or any 30-bed hospital. The prescription they will not release any prescription. The prescription they will taken back and keep in their pharmacy. So one time or second time we have to go the same hospital, same clinic, even 30-bed hospital. There is no previous history. So That is this- one. That is the one thing. And another thing is now, most of the time, especially our Keralite, they don't know Hindi, so the translator problem is very difficult. When the doctor seeing from this entry of the gate, he started to write some medicine. So there is no translator. That is we are facing another problem also. So what we can do, and another major problem, as I am a qualified pharmacist also, that is why I am telling. The 13-bed hospital I experienced several times. The medicines are giving the same carrying bag, and I raised this problem in the when we have one meeting with the CGI at that time. Even the CGI they told me to return one complaint also. At that time I wrote the one complaint also. They are giving after seeing consulting the doctor, they are giving the medicine just like one carrying bag. They are just simply say one tablet 2 times 3 times this like. Yes, yes. So it will make more problem. So in the next year what we can do these things. See, actually, your concern are already noted. We are trying to bring all the medical history and the patient data in Hajsuda app also. That is also one part of this year's Hajsuda 2.0. But, whatever issues you are telling, it's right. Language problem is everywhere. Not only in medical issue. If Kerala Haji doesn't know Hindi, he will face problem outside in other places also. But you have KMCC, you have a lot of volunteers, they will always help. So those problems are solved. But another thing I would like to tell, if you have specific questions you ask, because time is limited and all this previous experience, if you want to share, there is a different forum that we will have it sometime later. We can have a video conference also. And anybody, next question please. Sir, Uh, Simple you- question. yes. What's the last date of submission of passport to the state Hajj committee for NRI? See, we have given specific date for submission of passport. There is no specific date for NRS. It is only same. Say Yes. 18th of Feb. Yes, yes. Sir, most of the NRIs are abroad. So is there any If any specific case is there, please give an application to the Hajj Committee of India, to the state Hajj committees. We will examine case to case. Okay, thank you, sir. एक्सक्यूज Next मी सर Please. वेलकम Please. सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं एक लेडी One question only because we नहीं, don't have time. नहीं एक्चुअली नहीं. One question. Please ask one question. So many people are waiting. सर लेडीज हैं वो पूछ रहे हैं जो कैबिन बैग होता है 7 kg का उसके साथ क्या वो अपनी वैनिटी बैग लेके जा सकती है अगर लेके जा सकती है तो वैनिटी बैग कितने किलो के 2 या 3 किलो कितने किलो की होनी चाहिए एक दूसरा 2 लेडीज हैं जो रिपीटर्स हैं उनका खुर्रा उठा है और वो पैसे भी बन चुकी है 2 इंस्टॉलमेंट बन चुकी हैं तीसरे Cancelled. वो Sir, repeaters वो है अपने cancelled. नहीं वो अपने वो cancelled. वो repeaters है. वो तो है cancelled. अच्छा अगर कैंसिल करना है तो सिर्फ वो रिपीटर का कैंसिल करना है या फिर उनके जो हस्बैंड Repeaters will be cancelled. सिर्फ उनका एक का नाम रिपीटर का करना है Repeater का cancel हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम सर। उनका क्योंकि सब full लोग- amount forfeit हो जाएगा. Yes. Next अस्सलाम question वालेकुम please. सर। Sir, please. excuse me, sir. Please. Sir, I have 2 concerns about the trainer, sir. नंबर 1 सर ये प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि ये जो हाई ऑफ ट्रेनर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें हाई कंप्लीट हाई प्रोसेस में। नहीं आपका क्या क्वेश्चन है बताइए. ये सजेशन है एक सर। सजेशन नहीं क्वेश्चन आंसर सेशन है. कोई और क्वेश्चन पूछना Excuse चाहते हो me, तो sir. बताइए. ओके सर रिलेटेड नहीं थैंक यू प्लीज. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर लास्ट में आपने बताया कि अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है हज कमेटी से कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे बट स्टेट हज कमेटी उत्तर प्रदेश नहीं हमारा गाइडलाइंस ऑलरेडी दे चुका है. उसमें लिखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग में रहेंगे. बट सऊदी गवर्नमेंट का अभी तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं आया है. उसको बारे में बाद में हम इशू करेंगे. बट एज ऑन डेट यू प्लीज फॉलो द हज कमेटी ऑफ इंडियाज गाइडलाइन विच स्टेट दैट द मेन एंड वुमेन विल बी इन सेपरेट spaces. Next question please. गुड इवनिंग सर Yes ma'am please.
I'm a trainer from Karnataka. Corresponding to his question, मालूम करना था सर कि बिकॉज इस साल मैं ट्रेनर कम पिलग्रिम हूँ, तो इन केस आप बोल रहे हैं कि महरम और ना महरम अलग अलग रह सकते हैं, लाइक इन केस आई हैव अ फादर ही स्टेइंग विद men, and in case Well, Mahram will be in different spaces. That's what yes you're yes asking. Yeah. yes, but in case he faces, अगर वो कुछ बीमार पड़ गए या कुछ, तो accessible है, No, कैसे case to approach case, करें? case to case and situation based, we will have to decide तो on the it field. is allowed. No. It is on the field. We don't give any commitments now. अच्छा, so you're not committing anything. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़र हयात, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ और ट्रेनर हूँ। 2 साल से आप जो रियाल की शक्ल थी हमारी पहले चलती थी, 2100 रियाल जो इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। वो तो हज पॉलिसी में भी नहीं है। लास्ट ईयर 2024 में भी नहीं इशू किया प्राइवेट था। वेंडर आते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं हाजियों को, बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं, इसमें हम स्टेट हज कमेटीज को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI बैंक को बोले हैं, ये तीनों बड़ा बैंक हैं, तो इन लोग से बोला है कि आप स्टॉल्स बनाइए हज हाउसेस में और एम्बार्केशन पॉइंट्स में। अरे प्लीज लिसन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Please, I will complete the answer. तो जी, इसमें सर। आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा सभी हाजियों के लिए, तो दे कैन गेट द बेस्ट रेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई एक मिनट, तो मेरी पर्सनल खुद की एक्सपीरियंस है कि जब भी PIR के लिए सऊदी एयरलाइंस या एयरपोर्ट पे किसी को भी अप्रोच करते हैं, तो वो सामान जो आया नहीं है उसके लिए तो PIR लॉन्च कर लेते हैं। उसके अलावा अगर किसी का सामान खोया है, उसमें से कुछ सामान खरीदने के बाद गिरा है, कुछ भी है, उसके लिए PIR रेज नहीं करते हैं और एक रजिस्टर से लेकर आ जाते हैं फर्जी से PIR। नहीं, वो ऐसे PIR रिफ्यूज कर रहे तो उस समय इमीडिएटली यू गाइस डू द स्टेट हज कमेटी, उधर भी हम हज कमेटी के स्टाफ को यस, हमारा लोग रहते हैं, सुल्तान और रहते हैं और मिस्टर नईम रहते हैं। उस सर समय मैं तो खुद एयरपोर्ट पर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नो है, लास्ट ईयर भी हमको प्रॉब्लम पता चला था, बट इसके लिए हम बोल रहे हैं इस बार भी आप और सर इंश्योर कर दूसरा लीजिए। एक ये कि मीना में जो हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है कि कैंप जो है ना बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गवर्नमेंट वहां से बात करे कि इंडियंस जितने भी कैंप है वो एक ही साइड में हो, ताकि लोग जमरात के लिए आने जाने के लिए उनका रास्ता। नजीम साहब एक मिनट, जी अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा जी सर, एक मरतबा इधर उनके सवाल का जवाब दे दें। उनके सवाल का था कि मीना में, अच्छा वो दे रहे हैं जवाब, हम सुने कि दूसरा कोई पूछ रहा है। मीना में आपका सवाल ये है कि वहां पर एक साथ हम इंडियंस को क्यों नहीं रखते हैं, करेक्ट? करेक्ट। अब मेरे को ये बताइए, मैं इसका एक आपको काउंटर सवाल पूछता हूँ, ये इतना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, क्या इसके ऊपर हमने नहीं सोचा होगा? जब आप समझ रहे हैं कि उसके ऊपर जब सोचा होगा और वो पॉसिबल नहीं हो रहा है वहां के रेगुलेशंस में, तभी तो वो नहीं हो पा रहा है ना। नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट द हाजिस इन द यूनिफॉर्म लोकेशंस। ट्रेन का कैंप साथ साथ ही रहेगा और नॉन ट्रेन कैंप्स भी साथ साथ ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट 30,000 to 40,000 हाजिस एक जगह पे अकोमोडेट हो जाएंगे, तो आपका आसानी होगा, डोंट वरी। जी सर, मेरा एक सवाल था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आप सभी हजरात को, सुबह से लेकर के अब तक तो अच्छा माशाअल्लाह। होगा, क्योंकि अभी जी। देखिए, अभी ये सेशन होने के बाद आपके हाजी सुविधा आपके लिए भी सेशन है, वो भी और इम्पोर्टेंट सेशन है, तो उसके बारे में भी हाजी को आप बोलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बोलिए, हम इमीडिएटली आंसर करके नेक्स्ट जी मेरा सवाल सर ये है कि अरे यार बैठ जाइए एक मिनट के लिए। मेरा सवाल सर ये है कि जितने भी प्रॉब्लम जो भी मैंने महसूस किया, वहां भी कई बार जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ, जो भी हाजियों को जो वहां पे प्रॉब्लम होता है, वो मेन जो है, जो मेरी जो समझ है, वो खादिमुल हुज्जाज की वजह से। जी नहीं और मेरा नहीं सर, वो खादिमुल हुज्जाज की वजह से। एक मिनट बताइए उसकी वजह उसकी वजह ये है, नहीं आप मुझे उसकी वजह ये है सर, प्लीज लेट मी टॉक, प्लीज लेट मी टॉक, ओके प्लीज मैं सर ये अदरवाइज यू कैन सिट डाउन प्लीज। जी नो ऐसे बात नहीं करेंगे ना। देखिए, आपका क्वेश्चन है तो पूछिए, हम सुनने के लिए नहीं राजी है, आप बोलिए। मैं जो कहना चाहता हूँ सर वो प्लीज लिसन टू मी। नहीं प्लीज लिसन टू मी। आपका कुछ नहीं क्वेश्चन है तो बताइए, मैं हम सुनने हमारी के लिए बात चाहिए। को सर आप समझ नहीं रहे सर, मैं जो कहना चाहता हूँ। नहीं आप क्वेश्चन बताइए, जी। कादिमुल हुज्जाज का नहीं, क्या बात- इशू है बताइए। हम मैं उसका answer देंगे। मैं ये चाह रहा था सर
नहीं चारना नहीं है, आपका क्वेश्चन बताइए, हम आंसर करेंगे नहीं, इसका। मेरा ये मेरा एक वो था, कहना ये था सर कि खादिमुल हुज्जाज को चूंकि हाजी लोग समझ नहीं पाते हैं, हाजी लोग जान नहीं पाते हैं कि मेरा खादिमुल हुज्जाज कौन है सर। तो वो इन्फॉर्मेशन इस बार जल्दी से इस देंगे। तरीके से जो खादिमुल हुज्जाज का जो इंतखाब होता है, जो चयन होता है सर, अगर वो पहले मालूम हो जाए और हर डिस्ट्रिक्ट में खादिमुल हुज्जाज को भी ये मालूम हो जाए कि हमको कितने हाजी मिलेंगे इंडिया में, कम से कम वो ट्रेनिंग के मौका पे अगर वो चले जाएं, हाजिरी हो जाएं, तो हाजी भी समझ जाएगा कि ये मेरा खादिमुल हुज्जाज है। तो इस तरीके से जो है उसके बहुत से प्रॉब्लम, हाजियों के बहुत से प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद हल हो जाएंगे सर। पॉइंट नोटेड, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, उनको अप्रिशिएट करेंगे, बट वी विल ट्राई, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खादिमुल हुज्जाज और पिलग्रिम्स का रिलेशन आगे बढ़ने के लिए हम वी विल मेक सम सिस्टम्स इन प्लेस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज सर मेरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। हेलो, सीधा मेरा सवाल प्लीज प्लीज बताइए। मुझे ये पूछना ही था, मुझे ये पूछना है कि खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटीज क्या होती हैं। हाजियों के जहन में ये होता है कि खादिमुल हुज्जाज हमारे पता नहीं कौन कौन से काम करेंगे, उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। इसके लिए अभी आप सही जवाब पूछे थे, इसके लिए हम सॉल्यूशन भी कल आपका एक सेशन है, खादिमुल हुज्जाज का क्या क्या काम होते हैं, उनसे क्या क्या हाजियों सर्विस ले सकते हैं, खिदमत क्या ले सकते हैं, उसको भी हम क्लास लेंगे। इसको आप हाजी को पहुंचा दीजिए, सभी हाजियों को। सर उसका कोई एक लिटरेचर का हो जाए है वो भी आपको देंगे, अभी सब क्लासेस का प्रेजेंटेशन भी आपको देंगे और अस्सलाम वालेकुम। खादिमुल हुज्जाज का डिटेल भी दे देंगे। नेक्स्ट, हाजी लोग जो जिद्दा एयरपोर्ट से लेकर मक्का जा रहे हैं, फिर मक्का से मदीना जा रहे हैं, उसी से पहले सब जो जैसा होता था कि हाजी के साथ उसी गाड़ी में लगेज लेकर जाते थे, उसकी वजह से उनके बैग मिसप्लेसमेंट नहीं होता था। लेकिन इस मरतबा जो है चंद सालों से हाजी अलग ट्रैवल करते हैं और बैगेज अलग जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से मिसप्लेसमेंट जो है बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। नहीं मिसप्लेसमेंट तो नहीं होता है, बस लेट आता है। आपका लगेज टैग किया तो वो वापस आ ही जाता है, इसलिए तो आपका बोला है कि हैंड बैगेज में एसेंशियल चीज को साथ रख के जाइए हाजी, और इलेक्ट्रिकल और प्लग पॉइंट वो सब चार्जर सब कुछ साथ रह के जाइए तो हाजी के लिए सहूलत होगा। यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज। अस्सलाम वालेकुम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वालेकुम सलाम। सर मैं मुंबई से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है सर, बहुत सारे कॉर्पोरेट में काम करने वाले हाजी जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि उनको इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती है। तो एक शॉर्ट पैकेज हज के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो शॉर्ट पैकेज तो हज कमेटी से शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर मेरी सीजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो वो लोग खुद अपने खर्चे से टिकट निकाल के वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जॉब का सवाल होता है। ट्रेनिंग सेशन का स्कोप में नहीं है, इसके बारे में हम पूछेंगे, आंसर भी नहीं देंगे। ओके, एवरीबॉडी नोज द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, आप उसी हिसाब से कर लीजिए। अच्छा सर, वो क्लबिंग का जो है इससे पहले हमेशा क्लबिंग होता था। नहीं, अभी आप गाइडलाइंस पढ़े थे तो उसमें क्लियरली लिखा है क्लबिंग इज नॉट परमिटेड। Any other questions? So we'll close the session. We'll start the Hajj with app. One last question. Who is the lucky chap? One lady, please. सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर, मैं तेलंगाना से, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है Please. सर, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। नहीं, वेट कीजिए। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है नहीं, प्लीज सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर, मैडम को दीजिए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन मैडम को दीजिए, प्लीज लिसन टू अस। ओके, आपका ट्रेनिंग सेशन है क्या? हमारा ट्रेनिंग सेशन है। सर मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, प्लीज लिसन, लेडी इज वेटिंग, उनको माइक दीजिए प्लीज। खत्म हो जाता 4 बंदा का जो होगा सर, हाजी को प्लीज लेट her complete her question, then we will answer your question. नहीं, जल्दी ले यार। Silence. मैडम आप बोलिए। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। लास्ट ईयर पे 2100 रियाल पे नहीं दे, इस साल देंगे क्या? नहीं। ओके। आप कुछ तेलंगाना से बोलना चाहते थे ना, आप बोलिए क्या क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन होगा इस बार का।
देखिए आपका सबका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। एक प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो आपका क्वेश्चन सब जवाब मिल जाएगा। अरे कितने बार बस आप वो बोलना चाहते थे ना, आप बोलिए। उनको माइक दिया हुआ नहीं वो खामोश हो जाएंगे। एवरीबडी प्लीज बी साइलेंट, थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया लग रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग एंथुसियास्टिक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं यूपी से माई सेल्फ जावेद आलम एडवोकेट। मेरा कहना ये है, जो मेरे कोलीग हैं उन लोगों ने अभी तक जो हाजी प्रोसीड कर रहे हैं उनकी बात हुई है। जो हाजी पीछे रह गए हैं, हज कमेटी की गाइडलाइन के मुताबिक 65 प्लस के साथ एक कंपेनियन होना चाहिए। मगर जब हस्बैंड और वाइफ दोनों 65 है तो उनके साथ कम से कम एक बेटा उनका नहीं, एक बेटा अलाउ करें, ताकि हमारा जो कोटा बच रहा है देखिए उसी के अगेंस्ट सर पीटीओ को हम लोगों ने एक मतलब कोटा बढ़ाया। सर हमारा घटा है हज कमेटी का और पीटीओ का बढ़ा। देखिए हज तो सर बहुत से लोग मायूस हैं, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे हैं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स देख रहे हैं, जज्बात देख रहे हैं, जो काफी बुजुर्गी के आलम में है। ये इसकी तरफ आप लोगों से गुजारिश है कि जरा सोचिए। आपका बातें सुन गई, तो इस बार तो हज गाइडलाइंस और हज पॉलिसी एक ही तरफ के बनाए हैं। अगले साल आपको सजेशंस को आप ईमेल में दीजिएगा हमारा तरफ से भी, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी